years ago, the collective conscience of this nation was shaken by the Delhi gang rape. Angry people came out on the streets and the indignant outrage was echoed here in Parliament. 3 years later, the streets are silent. Parliament is in virtual coma. But the parents of Nirbhaya, or the Delhi Braveheart as I would like to call her, are still asking the big questions. They're still seeking justice and they're still seeking a sense of closure. How will that closure be provided? Because one question that is being asked is, will the juvenile who was involved in that terrible gang rape, will he get away in a few days from now? Let's start then with my colleague Maha Siddiqui's report on just what lies at stake 3 years after the Delhi gang rape. अगर 6 हैं और 6 क्राइम किए हो तो 6 का पूरा ही हाथ है उसमें और 6 वो ही सजा के हकदार हैं. Post December 16, 2012, chilling details of the crime tumbled out. The juvenile, 3 months short of 18 years, reported as being most sinister. The mind-numbing details of that horrific crime is now pushing a change in law to punish severely juveniles between 16 and 18 years of age who commit heinous crimes such as rape. The Women and Child Development Ministry is backing its case through the National Crime Bureau statistics. It shows there has been a drastic increase in crimes against women in the last decade. But opponents of the bill believe a society should encourage reform, not retribution. In those countries where they have tried this, in America, for example, there are 50 states, each one has its own laws. So some 13 states, they do this to children. There have been studies in those states that have demonstrated that 80% of the children who are treated as adults and tried and jailed go back and commit more crimes. Because you put a child in jail with adult prisoners, often for as much as 20 years, you're going to produce hardened criminals as a result. But Subramaniam Swamy does not buy this argument. He has approached the court to demand further detention of Nirbhaya's juvenile rapist, citing indoctrination inside the juvenile home as a reason. I would think that rape and murder cannot be committed by a person who doesn't know what he's doing. Juvenile concept is that you do not understand the implications of what you're doing. But rape, and that too the kind of rape that was done to that poor Nirbhaya, you have to be a monster. The bill pending in the Rajya Sabha for several months now states that the Juvenile Justice Board will decide in a month's time whether a case of heinous crime committed by a juvenile should be treated under the Indian Penal Code, which effectively means that in some cases a juvenile could be treated as an adult. But the bill is unclear about where under-trial juveniles will be housed. It does not clearly state segregating young offenders from adult offenders. This is what worries many. Prison rape is perhaps more debilitating insofar as you do not have access to the instruments of the law. If one would be abused outside, one would still have, you can run to a police station or you go and speak to a relative or a family member who can take action. What would you do there? The concept of Brostel schools to house young offenders in adult prisons is fairly alien in India. There are only 21 Brostel schools in India, that too in only 10 states. According to the Prison Statistics of India, in 2013, the occupancy rate of prisons was 118.4%, leading to an overcrowding of 18%. Lack of inspection and monitoring of prisons is commonplace. Under-trial review committees headed by a senior judicial officer to periodically review long and unnecessary detentions has not yet been constituted in all states. The number of suicides also remains fairly prevalent. There were 70 cases of suicide in 2013 alone. The entire system is not meant to create people who become useless, who became destructive, who became negative and who really destroy the society. You are trying to do because you want to reform a person, you want to make him better. So from that point of view, a differential treatment of the juvenile, even if the child commits a serious crime, is the proper thing to do.
However, many ask, if Nirbhaya could not get a second chance at life, does the juvenile deserve so? The jury is still out on that one. In New Delhi, Maha Siddiqui for India Today. One enduring image of the aftermath of the Delhi gang rape was the remarkable stoicness and courage, raw courage, shown by the parents of Nirbhaya, or the Delhi Braveheart. Asha Devi and Badri Narayan are individuals who perhaps have set a precedent. They fought back their tears to fight on for others. Listen in to their story. And with us are two very special guests. दो बड़े खास मेहमान आज हमारे साथ हैं. ज्योति सिंह के माता पिता, निर्भया के माता पिता, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो आए. मैं जानता हूं कि कितनी तकलीफ होती है आपको, और एक तरह से मीडिया दिसंबर 16 को ही एक तरह से याद करता है. आप मुझे पहले भी कह रही थी, इंटरव्यू के पहले आप कुछ कहना चाहती थी कि क्या हर साल दिसंबर 16 पर ही लोगों को याद आती है कि क्या हुआ था उस दिन और क्या हमारे समाज ने किया है उसके बाद? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि 16 दिसंबर को ही निर्भया की सबको याद आती है, कानून से लेकर प्रशासन तक, समाज तक, मीडिया तक. क्या इसके बीच में कोई याद नहीं आती कि नहीं उनको इंसाफ नहीं मिला? चाहे और बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, क्या किसी को नहीं दिखता? जैसे आज हो रहा है कि नाबालिग के लिए कोई कानून नहीं है. जब निर्भया की घटना हुई थी तभी भी ये चर्चाएं हुई थी, तो क्या अगर उस टाइम ये कानून बन गया होता तो ये भी नहीं बाहर आता, और जितने हमारी बच्चियों के साथ बलात्कारें हुई हैं, जितनी बच्चियां मर गई हैं, शायद वो भी बच जाती. आप कह रही हैं कि अगर नाबालिग कानून तब होता, क्योंकि आज एक ऐसी स्थिति आ गई है कि 4 दिन में दिसंबर 20 को 4 दिन में शायद जो नाबालिग जो इस बलात्कार में शामिल था उसको सरकार रिहा कर रही है, क्योंकि कानून कहता है कि उसको रिहा करके उसको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, उसको सिलाई की मशीन दी जाएगी, एनजीओ के साथ काम करना. तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी सरकार से कि वो छूटेगा और उसको ऐसे सपोर्ट किया जाएगा. क्या कभी विक्टिमों से कोई पूछता है कि नहीं हम पे क्या गुजरती है? जब इंसाफ की हम किस लिए जीते हैं? हम तो उसी बच्ची मर गई, हम इसीलिए तो खड़ा हुए नहीं कि नहीं हमें इंसाफ मिलेगा, हमारी कोई गलती नहीं थी. लेकिन आज क्या हुआ? हमारे से तो कोई किसी ने नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए. उसको बचाने के लिए क्या एनजीओ में जाना चाहिए, तो मशीन मिलना चाहिए. लेकिन मैं भी कहती हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि वो देश का पुरुष है, उसको अगर जीने का हक है. मैं भी इस देश की इंसान हूँ, मेरी बेटी थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए. यानी आज आप कह रही हैं इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला, मुझे नहीं मिला. जो भी मिला कागजों तक है. जब तक निर्भया के 5 मुजरिमों को फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा. बद्री नारायण जी, क्या इंसाफ तभी मिलेगा जब फांसी होती है? क्या यही कानून होना चाहिए कि उनको फांसी मिलनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं, जो चाइल्ड राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को बदलने के लिए एक मौका देना चाहिए. मैं उनसे पूछती हूँ कि जब हमारी निर्भया सड़क पर तड़प रही थी, गाड़ी रोक रोक के शीशा नीचे करके के लोग देख के मुंह फेर के चले गए, उस दिन वो चाइल्ड वाले कहाँ थे? जो 2-2, 3-3 साल की बच्चियां मर रही हैं, घर में से उठाई जा रही है, उस टाइम चाइल्ड वाले कहाँ थे? उस टाइम में हमसे क्यों नहीं पूछे कि नहीं आपके बेटी के साथ गलत हुआ है? जो भी इसमें आ रहा है मैं वो करी, या तो उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, या तो वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता. तो आप कह रहे हैं कि मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो क्यों वो कहते कि नहीं इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, कानून नहीं बदलना चाहिए? बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कानून 1 साल पहले, 15 महीने पहले, करीब 15 महीने पहले कानून में बदलाव लाने की कोशिश की गई, जिससे नाबालिग की उम्र जो थी 18 साल से 16 साल होगी,
और जिस तरह का अपराध हुआ है उस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि उस व्यक्ति को जेल में रखा जाएगा या जुवेनाइल होम में रखा जाएगा या 18 साल की उम्र में उसको रिहा किया जाएगा। यह सब कानून में बदलाव लाने की कोशिश 12 महीने हुई थी, लोकसभा ने पारित किया, अभी राज्यसभा में बैठा हुआ है वो कानून। तो क्यों बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं पास किया जा रहा है? क्योंकि हमारे नेता जो है वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा है। क्योंकि उन नेता लोगों की बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है, उनकी बेटियां कार में चलती हैं, लेकिन हमारी बच्चियां रोड पे चलती हैं, बस में चलती हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं बदलने देना चाहते हैं। अरे मुझे कोई अंदाजा लगा सकता है कि मैं किस लिए खड़ा हूं, किस लिए जिंदा हूं। मैं इसी भरोसे जिंदा रही कि नहीं, अगर मैं क्या समाज ने, अगर सामने समाज आया है, हमारे बच्चे महिलाएं सामने आई हैं, तो हमारे सिस्टम को जरूर आंख खुलेगी और जरूर आज से इस पे काम होगा। हर चीज का घोषणा होता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सफाई अभियान लगाओ। क्या कभी किसी पार्टी ने, किसी नेता ने घोषणा किया कि महिलाओं के साथ रेप नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ कोई घूरेगा नहीं, छेड़खानी नहीं होगी? मैम कहते तो बहुत है, आपके शब्दों ने आज हमें रुलाया है। कहते बहुत है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी जब लाल किले पर थे उन्होंने भी ये कहा है। मेरा आपसे यही निवेदन है, क्या आप वाकई समझते हैं दोनों? आप मैं समझती हूँ, मैं ये भी मानती हूँ कि इसमें खाली सरकार की गलती नहीं है, खाली पुलिस की गलती नहीं है, कानून की गलती नहीं है, हमारे समाज की भी गलती है, हमारी गलती है, हमारे घर में माँ बाप की गलती है। लेकिन सबसे जो यहाँ मेन है, क्योंकि हमारी कोई नहीं सुनता, सबसे है कि जब तक इनको समय रहते इनको सजा नहीं मिलेगी, इनके ब्रेक नहीं लगाए जाएंगे, तब तक घटनाएं नहीं रुकेंगी, क्योंकि हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मेरी 18 साल की बेटी है, तो मैं आपका दर्द एक तरह से समझ सकता हूं, लेकिन आपके दर्द में मैं शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि आपका दर्द आपका ही है, आपकी बेटी गई है, मेरी नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, बद्रीनारायण जी, आशा देवी ने बहुत अपने भावनात्मक अंदाज में ये कहा है, क्योंकि वो मां का दर्द, एक दर्द कोई नहीं समझ सकता उस दर्द को। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी सरकार से पूछा, जब आप मंत्री से मिलती हैं या किसी ये बड़े बड़े व्यक्ति जो आते थे, जब ये घटना हुई सब आपके घर आए, सब आपके दरवाजे पर आए कि हम आपके साथ हैं, आज इतने सालों में जब आप किसी से पूछते, क्या कहते हैं वो आपको? देखिए, प्रधानमंत्री के पास गए, ये सब कुछ हमने अपना रोना रोया सब कुछ बता लिखित रूप में दिया है जी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ बिल्कुल। आप मनमोहन सिंह के पास भी गए थे? नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने आपको बुलाया था, उन्होंने आश्वासन दिया? जी हाँ। हम होम मिनिस्टर राजनाथ जी हैं, उनके पास भी गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। तो इतने बड़े लोगों के पास जाने के बाद सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। और ये देखिए, हमारी चिंता सिर्फ ये नहीं है कि जुवेनाइल छूट जाएगा तो क्या होगा, दर्द तो दर्द है। हमारी चिंता सिर्फ इस बात की है कि आज जिस तरह से रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, या जुवेनाइल इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो आगे आने वाले 10 साल में प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे कितना भी बड़ा कोई पावरफुल नेता क्यों ना हो, हमारे देश के लिए, हमारे दिल्ली के लिए क्या कोई दे रहा है? मैं ये नहीं कहती कि मेरी पर्सनल बेटी थी, मेरी केस पर्सनल है। मैं ये कहती हूँ कि चाहे पीछे का केस हो, चाहे आगे का हो, सब बच्चियों को इंसाफ मिले और हमारे को भी इंसाफ मिले, मेरी बच्ची को भी इंसाफ मिले। मुझे अपने लिए ये नहीं कि मेरी बेटी पर्सनल थी, उसके साथ हुआ, उसको इंसाफ मिले। मैं तो चाहती हूँ कि सब बच्चियों को इंसाफ मिले। क्योंकि हर रोज आप देखते होंगे पेपर में कि कहीं ना कहीं कुछ बलात्कार होता है। कल ही एक घटना हुई है पूर्णिया में, 7 साल की बच्ची के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया खेत में। यानी कुछ रोका नहीं गया है लोगों को, कुछ नहीं। आप नहीं समझती कि कोई बदलाव समाज में आया है, कि लोग जान गए हैं कि किस तरह से, अगर इसी तरह की घटना होगी, अगर ज्योति जैसी कोई लड़की उसी तरह से रास्ते पर फेंकी जाए, तो आपको लगता है जनता रुकेगी या नहीं? देखिए, कोई बदलाव आया है या नहीं आया? अगर नहीं आया तो बोलिए नहीं आया। नहीं आया है, नहीं आया। आपको नहीं लगता इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना कानून हुआ, इसके बाद
मतलब कुछ नहीं पता। नहीं, बच्चियों के साथ नहीं है। कई कई केस मैंने टीवी के माध्यम से देखा है कि लोग वहीं पे चाकू मार रहे हैं, छटपटा रहा है आदमी, छटपटा रहा है, लोग तमाशा देख रहे हैं। बच्चियों के ही नहीं है, आदमियों के साथ भी है, पर बच्चियों के खिलाफ खास करके ज्यादा है। तो आपको लगता है ये जो जितना भी आंदोलन हुआ था उससे क्या फर्क पड़ा है कि नहीं समाज में? नहीं, आंदोलन की आवश्यकता इसमें पड़ गई है। एक बार फिर आंदोलन करना पड़ेगा आपको लगता बिल्कुल है? करना पड़ेगा, होगा। एक बार फिर आंदोलन होगा अगर कानून में बदलाव नहीं आए, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं आए, अगर नाबालिग बच्चों के खिलाफ आप कह रहे हैं 16 साल की उम्र होनी चाहिए या अपराध को देखकर किसी को पनिशमेंट करना चाहिए? सिर्फ जो अपराध, जिस तरह का अपराध होगा, जिस तरह का क्राइम होगा, उस तरह का सजा की व्यवस्था। तो आप कह रहे हैं 16 साल 17 साल उम्र से कुछ नहीं होता है, मायने रखता है किस तरह का अपराध हुआ? हाँ, मायने ये रखता है कि जिस तरह से आजकल समाज में क्राइम का, उम्र का कोई सीमा नहीं है, उसी तरह सजा की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कानून नहीं है तो इस कानून को बदलिए। और मैं आज एक बार फिर सबसे हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि जो भी मेरे को सुन रहा है, चाहे कानून से सरकार तक, समाज तक, स्कूल तक, कि सब लोग मिलके कम से कम इस पे पॉलिटिक्स मत करिए और बच्चियों के बचाने के लिए कोई ठोस कदम जरूर उठाइए। मेरे से जहां तक हो पाएगा, जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी, मैं इसके लिए लड़ूंगी। क्या डर है आपको अगर ये नाबालिग अब 20 तारीख को रिहा होता है? क्या डर है? आपने ये भी कहा है, मैंने देखा है कहीं, कि दुनिया को देखना चाहिए कि ये कौन है, इसका चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहिए, आप कहती है। मैं ये कर रही हूँ कि अगर आपके कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि इसको सजा दी जाए, तो कम से कम उसका चेहरा पब्लिश कीजिए, उसका नाम पब्लिश कीजिए, उसे एक्सपोज कर दीजिए। हाँ, कि कौन है ये, कौन है। कम से कम हमारे समाज में उससे लोग सचेत तो रहेंगे, लोगों को ध्यान तो रहेगा कि नहीं ये निर्भया का एक दोषी है, जो इसको कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि ये सजा मिले इसको, तो ये बाहर है। सरकार ने ये मुझे कहा, जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा हम चेक करेंगे, हर हफ्ते देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, हम उस पर निगरानी रखेंगे। अब तक कौन सा चेक किया है? उन्होंने क्या चेक किया है? जब चेक उन्होंने कह रहे हैं कि चेक करेंगे जी, तो तब चेक करके उन्होंने 3 साल में कौन सा बताया पब्लिक को कि हमने ये चेक किया या चेक नहीं? वो कह रहे हैं कि एक बार वो जेल से छूट जाए या जुवेनाइल होम से छूट जाए, हम उनकी निगरानी करेंगे कि वो लड़का क्या कर रहा है। आपको इस पर विश्वास नहीं है? मुझे इस पे विश्वास नहीं है। हो सकता है ये समाज को और मेरे को चुप कराने के लिए हो, लेकिन मैं बस यही जानती हूँ कि मेरे बेटी के साथ क्राइम हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए, कानून से इंसाफ चाहिए, सरकार से इंसाफ चाहिए, समाज से इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। बस बेटी होती तो एक सदस्य मेरे घर में डॉक्टर होता, लेकिन आज मेरे कोने कोने में गम है। 3 साल के बीच मेरे बच्चों ने कभी खुल के हंसा नहीं। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के दोनों बच्चों को दिल्ली से बाहर कर दिया। मैं अकेले घर में रहती हूँ, अकेले लड़ती हूँ। दिल्ली से बाहर किया क्यों? क्योंकि बच्चे को, हमारे दुख बच्चे नहीं देख पाते हैं, हमारे साथ दुखी होते हैं, उनके पढ़ाई में नुकसान होता है, इसलिए मैंने। क्या करेंगी 2 बजे? बाकी 2 क्या कर क्या रहे हैं वो? अभी तो पढ़ रहे हैं। वो कहाँ पढ़ रहे हैं? एक यूपी में है, एक इधर। तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है उनमें? हाँ, बनेंगे। और एक डॉक्टर बनेंगे, हो गया। वेरी गुड। मेरा भी बेटा डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टरी से और अच्छी बात क्या हो सकती है? तो उसके मन में कहीं ना कहीं है कि मैं दीदी का कुछ करेगा, दीदी का सपना पूरा करूं। दीदी का सपना पूरा करेगा, डॉक्टर बनेगा, वो है उसमें वो संकल्प। ये पूरे घटनाक्रम से क्या आपका एक विश्वास चला गया है हमारे नेताओं पे? और समाज में बहुत बड़ी बातें की थी 3 बार मीडिया ने भी। मैं मीडिया को भी नहीं छोड़ूंगा, जैसे मैंने कहा हम दिसंबर 16 को ही याद करते हैं। नहीं, सुनिए, दिसंबर 16 को 101% याद किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई घटना होती है तो मीडिया फिर भी हमारे पास आती है, पूछती है, ले भी जाती है। मीडिया का रोल अपनी जगह जो है ठीक है। क्या हमारे घर मीडिया हमेशा तो बैठी नहीं रहेगी जी? तो मीडिया का रोल अपनी जगह ठीक है, जनता का भी रोल ठीक है। जनता भी त्राह कर रही है जी। अगर कुछ सोया हुआ है तो हमारा कानून सोया, हमारी सरकार सोई हुई है। कानून, सरकार, हमारे जो सिस्टम, हमारी जो सिस्टम है एक तरह से। और आपने बड़ी बात कही कि अगर
किसी मंत्री के यहाँ ये होता तो आपको लगता है कानून में तुरंत बदलाव आता। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, एक तरह से बिल्कुल नहीं है। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। ये बात आज आपको लगता है इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट? अगर हम कोई, मैं 3 साल हर जगह, कोई जगह नहीं बाकी है मैंने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के इंसाफ मांगा है। मैं कभी नहीं कही कि मेरे बेटे को पढ़ाई चाहिए, मेरे पति को नौकरी चाहिए, कभी नहीं कुछ कहा। मैंने सिर्फ इंसाफ मांगा। आपने कभी सरकार से ये नहीं मांगा कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, मुझे कुछ नहीं मांगा? कभी नहीं मांगा। जो हमको अपनी मर्जी से मिला उसमें मैं खुश थी। मुझे यही था कि मुझे इंसाफ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मजबूरन मुझे चैनल पे चाहे रोड पे मजबूरन आना पड़ा। इसकी भी जिम्मेवारी हमारा सिस्टम और हमारा शासन प्रशासन है। अगर मुझे 3 साल के बीच में कुछ भी बदलाव दिखता कि चलो हमारी घटना जब हुई तो उस टाइम हमें सुनने में आया कि एक दुर्भाग्य बस एक घटना हो गई, इसके लिए कानून नहीं बदला जाएगा। जब जुगनाइल का फैसला आया था तभी मैंने कह दिया था कि उसको छोड़ दो। जब आपके कानून में कोई प्रावधान नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, चाहे बाल न्यायालय में रखो चाहे कहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें अगर 6 मुजरिम है तो 6 को सजा चाहिए। उसी टाइम में हमने कहा था, लेकिन उस टाइम ये हुआ कि एक घटना के पीछे कानून नहीं बदला जाएगा। क्या सबकी आंखें 3 साल में बंद है कि कितना घटना हुई और कितना कानून में संशोधन हुआ, कितने को सजा मिली? आज क्यों सबको याद आ रहा है? आज भी आपको लगता है कि जो बलात्कार करता है, खास करके नाबालिग, उसको लगता है कि वो कानून जो है उसको कुछ नहीं कर सकता, नहीं करेगा। ये एक तरह से डर नहीं है कानून का। डर नहीं है। आज जिस दिन ये बाहर आएगा उस दिन उन उम्र के बच्चों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये निर्भया का इतना घिनौना अपराध करने वाला मुजरिम बाहर आ गया। तुम लोग कुछ भी करो, किसी को मारो, किसी के साथ रेप करो, कोई सजा नहीं। मैं आखिर में आपको पूछूंगा, आज नेता जो है पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। ये बिल जो है, जैसे मैंने कहा, ये प्रावधान जो है 12 महीने से वही राज्यसभा में बैठा हुआ है। क्या आप दोनों कहना चाहेंगी उन नेताओं से? आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आपके सिस्टम से? देखिए, हम नहीं जानते कि नेता चलने दे रहे हैं नहीं। हमें तो कानून का जो ब्यौरा है वो चाहिए। कानून तो कानून चाहिए, कौन देगा हमें नहीं पता है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे राज्यसभा में हो, हमें वो कानून चाहिए जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। आखिर में क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं नहीं जानती कि कानून इंसान बनाता है या भगवान बनाता है। भगवान तो बनाता नहीं है, इंसान बनाता है। तो मैं ये नहीं, कम से कम सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है उस पे आप पॉलिटिक्स छोड़िए, सब लोग मिलके एक ठोस कदम उठाइए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर कानून बदलना है तो कानून बदलिए, सिस्टम बदलना है सिस्टम बदलिए, पुलिस बदलनी है पुलिस बदलिए, मगर कुछ करिए। यानी आपके आंखों में जो आंसू है, आपके दिल में जो दर्द है, आपकी आवाज में जो एक दृढ़ता है, वो शायद इस सिस्टम को शेक करेगी। आशा देवी जी, उम्मीद रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं यही उम्मीद करती हूँ और सबसे हाथ जोड़ के एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहां भी ये कानून फंसा है उसको पास करिए और बच्चियों के लिए सुरक्षा के लिए उसको लागू कीजिए। कम से कम जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है उस पे आप पॉलिटिक्स मत करिए। अब बहुत हो गया, एक बार आप लोग अपनी आंख खोलिए। और साथ में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं भी एक इंसान हूँ, 3 साल से संघर्ष कर रही हूँ। मेरे निर्भया के जो मुजरिम हैं उनको जल्द से जल्द फांसी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में केस लटकी हुई है, उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। बद्री नारायण जी, आशा देवी जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपनी बात रखी और आपने, मुझे लगता है जो भी सुन रहा है ये प्रोग्राम, अगर आपकी आवाज उनको अब बदलती नहीं है तो इसका मतलब है उनका दिल नहीं है, पत्थर है। इतना ही मैं कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. We've heard from Nirbhaya's parents. When we return, we'll be listening to the Women and Child Development Minister, Menaka Gandhi. How will the government of the day respond to the voices of the parents? That's when we return on Justice for Nirbhaya.
No, I think the story of Jyoti Singh, or Nirbhaya as the world knows her, is a story that touches everyone because it could happen to any one of us. And which is why you can empathize so readily with the parents confronted with a situation that she and her husband have to tragically deal with. In her tears, I must confess, it was impossible for me as not just a journalist, but a father and a citizen, not to also in some way break down.